आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। E-content in the form of videos made by team of A Plus Mathematics deals with the objective mentioned in CBSE and restricted to understanding the concept of the topic taught. For any misprint, other errors related to this video or content, the team of A Plus Mathematics will not be responsible anyhow for that. Any error in the said video is not intentional and the respective students can seek clarification from the concerned teacher with regards to the video. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 polynomials. Now you should know what is polynomial. A polynomial is an expression in which all variables have non-negative integral exponents. Means एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का मतलब x, y, z, दे आर नोन एज वेरिएबल, उन सभी वेरिएबल की पावर दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। मीन्स जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव। जैसे कि x की पावर -2 इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज x रेज़्ड टू पावर -2, it cannot be negative. Yes, if you'll say like 2x square plus 3x plus 5, that is a polynomial because 2x square x raised to power 2 plus 3x x raised to power 1 plus 5. So we can say this is a polynomial. Means a polynomial is an expression in which power, exponent means power of the variable, is non-negative. All right. Next is, what do we mean by degree of a polynomial? Degree of polynomial क्या होगा? किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x is known as degree of the polynomial. If px is a polynomial in x, the highest power of x in that polynomial is called degree of that polynomial. आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. लाइक what you will say, if degree is 1, degree is 2, degree is 3, then what you will say, see, when degree is 1 means a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, and a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. Means when the highest power of x is equal to 1, that is known as linear. When the highest power of x is 2, that is known as quadratic. And third one is when the degree means highest power of x is 3, that is known as cubic. Moreover, if degree of the polynomial is 4, that equation is known as biquadratic. Biquadratic. Okay. आगे देखिए. Next is geometrical meaning of the zeros of a polynomial. What do you mean by geometrically meaning? Geometrical meaning means graphical meaning. ग्राफ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? Let us say you are given a polynomial px of degree n and the graph intersect x-axis at the most end point. Means अगर कोई ग्राफ हमारे पास डिग्री n है, कोई हमारे पोलिनोमियल है विद डिग्री n, तो वो पोलिनोमियल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो वो x एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा. मतलब अगर डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे कट कर सकता है, 2 या 2 से कम. ठीक है. सो a polynomial px of degree n has at most n zeros. Zeros का मतलब क्या है? Those value of x axis at which that polynomial intersect. मतलब अगर किसी polynomial का आप ग्राफ प्लॉट करो, जिस पॉइंट पे आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो जितने पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा, सपोज करो ये x एक्सिस है, कोई ग्राफ आपने प्लॉट किया एक स्ट्रेट लाइन, तो वो सिंगल पॉइंट पे कट किया. कोई कर्व आप प्लॉट करोगे, सी फ्रॉम द एग्जांपल्स. कंसीडर, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल लिया, लेट अस से दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू 2x plus 3. ऑब्वियस है बिकॉज दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल. it represents a straight line. Straight lines you have done in class 9th also. You used to plot the graph of these type of equation, if you remember.
So you always you will get a straight line. So straight line, you can see this straight line cut x-axis at this point. This is one single point. So this point is -3/2, 0. So this is the only one zero of this equation. जीरो का मतलब जो मैंने कहा अभी, ये वाला जीरोस, जीरोस का मतलब क्या है? जीरोस का मतलब सॉल्यूशन की बात है यहाँ पर, ठीक है ना? जीरोस सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। अगर हम लेके चले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई टोल्ड यू इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज एट द मोस्ट 2। जितनी डिग्री होगी ज्यादा से ज्यादा उतनी ही जीरो हो सकती हैं, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 2 कैसे होंगे? सी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस जो कट ही नहीं कर रहा ना, तो कितने जीरो है यहाँ पर? 9 जीरो, एक भी जीरो नहीं है। इट मीन्स पॉसिबल कि वो एक जीरो हो। सी, ये इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मे बी 1 जीरो है किस पॉइंट पे? एट ए, है ना। और इस ग्राफ में देखो यू हैव 2 zeros, a and a dash. These are the 2 zeros of this polynomial. Means graph of a quadratic equation can be this form, this form, this form. Means number of zeros, number of solution can be, maybe it is possible कि it does not exist, maybe 1 0, maybe 2 0, but we cannot have more than 2 0, at the most 2 zeros. All right. Next, let us take some examples from exercise 2.1. You are given the graph and you need to find the zeros in each case. I'll take some examples. See, example number 1, question number 1, you need to find number of zeros. Now clearly you can see this graph does not intersect x-axis. So how many zeros this graph have? No zero. The number of zeros is 0. मतलब कोई भी जीरो नहीं है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। सिमिलरली दिस ग्राफ यू कैन सी इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट वेयर इज माय कर्सर। ओके, सो मींस नंबर ऑफ जीरो इज 1. व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? हाउ मेनी जीरो दिस ग्राफ हैज? 1 0, 2, 3 and 4. These 4 zeros. So we can say number of zero of this graph is 4. मीन्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, उतने ही पॉइंट उतनी ही जीरो बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल. इफ यू आर गिवन अ पोलिनोमियल, you need to find the relationship between the zeros and the coefficient. Understood? If you have that, you are given a polynomial, then what is the relationship? Relationship is sum of the zeros is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square. This is in the case of quadratic equation. If you have quadratic equation, because in this syllabus we have quadratic equation, so I have taken the example of quadratic equation only. Product of the zero will be minus constant term divided by coefficient of x square. This will be explained by another example. Let us say you are given a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Here coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and c is constant term. Let alpha and beta represent the zeros of this polynomial. Okay, so now if alpha and beta are the zeros, sum of a zero means alpha plus beta. Alpha plus beta is minus coefficient of x upon coefficient of x square. Now coefficient of x is b, coefficient of x square a. Put both the values, you will get minus b over a. Similarly, product of its zero means product of these alpha and beta, that will be equal to constant term divided by coefficient of x square. Constant term is c and divided by coefficient of x square is a. Okay, understood? Remember one in this part, I want to remind one thing. For how you will check whether this is a quadratic equation or not, what is the condition basically on in this equation? This a cannot be equal to 0. If a becomes 0,
If a becomes 0, this becomes 0. If this becomes 0, you will get bx plus c only, and bx plus c become linear. Okay, so what is the definition of a quadratic equation? If someone's asked what is quadratic equation, if you will say ax square plus bx plus c, you should apply condition also where a cannot be equal to 0. A cannot be equal to 0. Okay. Okay. Next is, now we are going to verify the relationship between the zeros and the coefficient with the help of some examples. In this question you are given x square minus 2x minus 8. Now you are given that equation is x square minus 2x minus 8. We can find its roots also, right? First of all, we will split the middle term and make the factors, and when you make the factors, if you equate this first term equal to 0 and this for the second term also equal to 0. Why? To find the zeros. To find the 0, what we need to do? We need to equate first factor equal to 0, second factor equal to 0. If x minus 4 equal to 0, you will get x equal to 4. And if second factor x plus 2 is equal to 0, then x equal to minus 2. Means x equal to 4 and x equal to minus 2 are the zeros, solutions of this polynomial. Okay. So therefore, zeros of the given polynomial are 4 and minus 2. We will represent one zero equal to alpha and second one is beta. अब आपकी मर्जी है, अगर आप 4 को अल्फा लोगे, minus 2 become beta. If you will take a minus 2 alpha, then 4 become beta. Alright, now you will consider the sum. Sum of the 0 is 4 and minus 2 का sum. 4 and minus 2 का sum, which is 4 minus 2 equal to 2. Also, if you compare with this relation, if you compare it ax square plus bx plus c, in place of a we have 1, in place of b we have minus 2, in place of c we have minus 8, right? And if you compare, you will get minus 2 is the coefficient of x, 1 is the coefficient of x square. See from the graph, from this. Okay, so basically sum of the 0 is nothing. This is minus coefficient of x divided by coefficient of x square, which is verified. Similarly, we will do for the product. If you will take the product of zeros, zeros are 4 and minus 2, take the product, you will get minus 8. And if you compare again by c by a, value of c is minus 8, a is equal to 1, which is again coefficient constant term divided by coefficient of x square. Hence the relationship is verified. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर बनाने हैं. फैक्टर बनाने के बाद आपने उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया. ठीक है, ये इक्वल टू 0 किया, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों को 0 के इक्वल करने के बाद आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारे अल्फा और बीटा होगा. एक बार दोनों का सम ले लो, एक बार दोनों का प्रोडक्ट ले लो. ठीक है, अब आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी है. और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको. इफ रिमेंबर, अगर आपको देख याद हो, ये जो पहले हमने इस वीडियो की, यू कैन सी सम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास. सम का फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला था सी अपॉन ए. उसके बाद हमने इसी वैल्यू को आपस में चेक करना है क्या क्या आपस में इक्वल आते हैं. अगर इक्वल आते हैं देन योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड. ओके, नाउ सी, वी विल टेक वन मोर पार्ट नंबर सेकंड. 4s square minus 4s plus 1. First of all, what we need to do? We will find its 0. मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. ठीक है, स्प्लिट करेंगे, you will get 2s minus 1 का होल स्क्वायर. This split already you know how you need to do. Now, if you first of all to find the zeros, what we will do? Equate this equal to 0. When 2s minus 1 equal to 0, from here you will get s equal to half. यहाँ पर हमें सिंगल 0 मिली है. ठीक है, और क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है?
2, तो दोनों जीरो सेम होंगी, पहला वाला भी हाफ, दूसरे वाला भी हाफ, ठीक है। ओके, सो वी कैन से हाफ एंड हाफ। एक को आप अल्फा ले लो, अनदर को बीटा ले लो, वी विल फाइंड देयर सम, ठीक है, एंड कंपेयर करेंगे किससे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वी विल फाइंड इट्स प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट को किससे आप वेरीफाई करोगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना ही आपने काम करना है और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। एक पार्ट और ले लो, ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, सेकेंड स्टेप जीरो निकालेंगे, थर्ड स्टेप वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप फैक्टर बनाना, इस केस में फैक्टर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, वी विल टेक द कॉमन, इफ यू टेक फॉर यूज कॉमन यू विल गेट u प्लस 2। सेकेंड स्टेप टू फाइंड जीरो के लिए फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म को इक्वल टू 0। When first term equal to 0, you will get u equal to 0, and when you equate second term equal to 0, you will get u equal to minus 2. Okay, so your second step also done. Third step, we need to take their sum as well as their product. So their sum will be 0 plus minus 2, you will get minus 2. You will compare it with the formula whether it is equal to minus coefficient of u over coefficient of u square. Why we have taken u? Because this expression is in terms of u only. Okay, similarly we can consider their product, and if you equate it with the coefficient you will get again constant term divided by coefficient of u square, which is again verified. All right, ठीक। But now the question is, जो प्रीवियस हमने किया उसमें क्या था, आपको इक्वेशंस गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड देयर जीरोस। बट अगर क्वेश्चन को उल्टा कर दें, मींस सम और प्रोडक्ट आपको दे दिया, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन, तो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आपको सम की वैल्यू यहां पुट करनी है, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट पुट करो एंड यू विल गेट स्ट्रेट वे इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 1/4 एंड -1, so we need to find the quadratic polynomial. So we will use the formula x square minus sx equal to p and plus p. Sum है 1/4, product is -1, use the formula यूज करेंगे, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। एलसीएम हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर दिया, वी विल टेक द एलसीएम एंड दिस इज योर आंसर। जब अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा अपॉन में जो 4 मिला था, व्हाट अबाउट दैट 4, बिकॉज नाउ दिस इज योर क्वाड्रिकेशन, हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, उस 4 को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, दैट 4 कैन बी इग्नोर, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड इट्स पोलिनोमियल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आगे देखिए, आगे है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सी, we need to divide this 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by x square plus 2x plus 1. This kind of division you already done in class 9th, but still we will do. First step, you need to remember the dividend as well as divisor. Dividend जिसको divide करना है, divisor जिससे divide करना है, ठीक है। दोनों x के डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ हो, means x cube, x square, x 5, again x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के अंदर होना चाहिए, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग पावर ऑफ x है देन वी विल डिवाइड। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर, वी हैव टू सेलेक्ट अ नंबर बाय विच इफ यू मल्टीप्लाई दिस x स्क्वायर you will get 3x cube. We need to find a number. So how you will find that? For that, one method is you will divide the first number, this first term,
by first term. If you divide 3x cube by x square, you will get 3x. Okay, now we will multiply this 3x by all the three terms and write down the terms below this dividend. If you multiply this 3x by x square, you will get 3x cube. 3x into 2x, 6x square. 3x 1 ja 3x. Next step, we will change the sign. This all three terms are of plus, so they all become minus. We will change the sign. If it is plus, we will make it minus. If it is minus, we will make it plus. Okay, now you will solve it. This 3 get cancelled. Minus 6 plus 1, you will get minus 5. Minus 3 plus 2, you will get minus 1. And this 5 becomes as it is. Remember, we will change the sign of this second term. जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना. We will not change the sign of this above term. Okay. Now again we need to find by which number we should multiply this x square to get minus 5x square. How you will do? You can divide this minus 5x square by x square and you will get minus 5. Now this minus 5 should multiplied by this x square plus 2x plus 1 and you will get minus 5x square minus 10x minus 5, because minus 5 into x square minus 5x square, minus 5 into 2 minus 10x, and minus 5 into 1 you will get minus 5. Then you will change the sign. You will change the sign of the term and then we will simplify this. You will get 9x plus 10. Now clearly further we cannot divide. Why? Because if you divide 9x, by which number you should multiply this x square to get 9x? x square को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए? वो होगा 9/x. अगर आप इस x स्क्वायर को 9 बाय x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को 9 बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक x कैंसिल होगा, यू विल गेट 9x. ठीक है, बट नंबर क्या है हमारे पास? 9/x, जो पॉलिनोमियल नहीं होती. ठीक है, तो इसके लिए हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. या सिंपल लैंग्वेज के अंदर x की पावर यहाँ पर पावर कितनी है? 2. सो ये अगर x की पावर 2 या अबव है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर 2 से कम हुआ डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, सो इन दिस केस योर this 3x minus 5 is your quotient and 9x plus 10 become your remainder. We also can verify your answer. If by chance in an exam you feel कि your question is not correct, then you can verify the relationship by using this relation, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, this can be used to verify whether your answer is correct or not. Okay, now if px and gx are two polynomials where second polynomial is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx. अब आप कहोगे ये क्या है? ये बेटा कुछ नहीं है, ये देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम ही है. ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई डिविडेंड है, उसको डिवाइड करने के लिए आपको कोई डिवाइजर दिया, तो हम उसका कोशेंट एंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं. ठीक है, कोशेंट एंड रिमाइंडर निकाल सकते हैं. ठीक है, बट एक और याद रखना है इस केस में, ये जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से छोटी होगी. जैसे हमने अभी पहले किया ना, ठीक है, उसमें 9x की जो पावर थी वो 1 रह गई थी, वहां पर x स्क्वायर था. रिमाइंडर की पावर हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी. इसको क्या बोलते हैं हम? दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये ऑलरेडी आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर, इफ यू रिमेंबर.
आगे देखिए, आपको इसको डिवाइड करना है 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, बट रिमेंबर आपको डिवाइड करना है, पहला स्टेप क्या था, x की डिक्रीजिंग पावर में इसको अरेंज करना है। ये x की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज नहीं है, इसको आप पहले अरेंज करेंगे, इसको रीराइट करेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, सिमिलरली देखो डिवाइजर भी देखो किस फॉर्म में है, इसको भी आप पहले माइनस x² प्लस x माइनस 1 फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे। देखा, इसको हमने माइनस एक्स क्यूब को पहले लिखा, 3x² को बीच में लिखा, x की पावर 3, x की पावर 2, देन x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 0। सिमिलरली पहले x की पावर 2 माइनस x², फिर x पॉजिटिव था तो प्लस x माइनस 1। डिवाइड करके आपको जो क्वोशेंट है, यहाँ पर क्वोशेंट आया x माइनस 2, रिमाइंडर आया 3। हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने से पहले आपको मैंने बताया था पहले ही कि ये जो डिग्री है रिमाइंडर की, इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। 3 में डिग्री कितनी होगी, 0, क्योंकि x है ही नहीं। 3 into 1 and 1 can be written as x raised to power 0, means here degree of the remainder is 0, which is less than divisor। जब डिवाइस छोटी होगी तो आपने उसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, बट हमें क्या वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। हम क्या करते हैं, हम डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर निकालते हैं। वी विल चेक क्या वो हमारा डिविडेंड के इक्वल आएगा। सारी वैल्यू पुट करते हैं। डिवाइजर क्या था मेरे पास यहाँ पर, दिस माइनस x² प्लस x माइनस 1 वैल्यू पुट की, क्वोशेंट की वैल्यू पुट की और रिमाइंडर की वैल्यू पुट की। इसको सिंप्लीफाई किया, ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट दिस थिंग। We need to check whether this answer is equal to dividend. Yes, they are equal. Implies your division algorithm is verified. ठीक है, आगे देखिए, divide the polynomial this px by this polynomial gx and find the quotient and remainder. ना अगेन इसका डिवाइड करना है, डिवाइड ध्यान से देखना। पहला नंबर क्या होगा, x² को x से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट x क्यूब। सो x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ, दोनों टर्म को नीचे लिखेंगे। अब आप कहोगे ये माइनस 2x को यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा। आपने 8th क्लास में सीखा था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। लाइक मीन्स x की पावर अगर सेम होगी, तो अगर हम माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट माइनस 2x। So we cannot write that minus 2x below this term of x². We will write down that x term below x only. Now change the sign, solve it. Minus 3x will remain same, plus 2 plus 5 plus 7 minus 3. Now by which number we should multiply this x² to get minus 3x²? इस x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x² आ जाए? या तो आप सोच लो, या फिर इस पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दो। माइनस 3x² को x² से डिवाइड करो, यू विल गेट माइनस 3, और माइनस 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस टर्म। चेंज द साइन एंड ऐड इट। नाउ वी विल स्टॉप अगेन एट 7x। वाई? देखो x की पावर 1 रह गई है, यहाँ पर डिवाइड कैसे करना था, x की पावर 2। फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइजर की पावर हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। सो क्वोशेंट हुआ x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज 7x माइनस 9। ओके, आगे देखिए। अगेन वी नीड टू चेक वेदर दिस t² माइनस 3 is a factor of the second polynomial or not. अब ये फैक्टर कैसे पता लगेगा, फैक्टर कैसे पता लगेगा, अगर आप डिवाइड करो और रिमाइंडर आ जाए 0 तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको देखो डिवाइड किया हमने, साइन चेंज किया, सिंप्लीफाई किया। अगेन वी विल फाइंड अ नंबर वी शुड मल्टीप्लाई बाय t² सो दैट टू गेट t³, 3t³। साइन चेंज किया, अगेन आगे हम देखो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। अगर 0 आ गया तो इट इज अ
फैक्टर। ठीक है, अगर 0 होगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन √2 और -√2 के साथ है एग्जांपल्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इक्वेशन है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। x की पावर कितनी है? 4, तो डिग्री कितनी हुई? 4। सॉल्यूशन कितने होंगे? 4। कितने 0 गिवन आपको? 2। कौन कौन से? √5/3 एंड -√5/3। 2 गिवन है, 2 और निकालने। ठीक है ना, वो 2 और निकालने हमें। कैसे निकालेंगे? 3 स्टेप में हम क्वेश्चन करेंगे ये। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? जो गिवन 0 होगा उनको हम यूज करेंगे। गिवन 0 क्या है? √5/3 एंड -√5/3। दे बोथ आर वैल्यू ऑफ x, सो दोनों को x से माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद या पहले भी ये x, अगर x = √5/3 एक 0 है तो x माइनस दैट वैल्यू बिकम अ फैक्टर। हमने पहले किया था, अगर x - 4 इज इक्वल टू 0, x = 4। अगर फैक्टर है तो वहां 0 निकाल लेते हैं, 0 है तो फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, तो उनका प्रोडक्ट भी आपस में क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है, ये नंबर, ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, सो वे नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम इस पोलिनोमियल को इस x² - 5/3 से क्या करेंगे? डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। इसको लॉन्ग डिवाइड किया, याद रखना यहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, दीज आर द जीरोस। अगर 0 है तो ये क्या बनेगा? इसका फैक्टर। अगर 0 है फैक्टर होगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 है, स्टेप 3 क्या होगा? इसका जो कोशेंट है, इस कोशेंट को हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज किया, x + 1 का होल स्क्वायर बना। इसको 0 निकालने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे, यू विल गेट x = -1। जब भी होल स्क्वायर होगा वो जो आंसर होगा वो रिपीट कर जाता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट इक्वल होंगे, जो आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, सो इसका मतलब इसकी दो 0 कौन कौन सी होंगी? x = -1 एंड -1। 2 गिवन थी, कौन कौन सी? √5/3 -√5/3। 2 हमने निकाल ली, कौन कौन सी? -1 एंड -1। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये पोलिनोमियल गिवन है x³ - 3x² + x + 2। किसी पोलिनोमियल से इसको डिवाइड किया, डिवाइजर हमें नहीं दिया होगा। क्या दिया हुआ आपको? रिमाइंडर दिया है एंड कोशेंट दिया। कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट है x - 2, रिमाइंडर है -2x + 4। क्या निकालना आपको? वो डिवाइजर निकालना है। क्या यूज करेंगे इसके लिए? पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट वाज दैट? Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Put all the values. Dividend equal to divisor into quotient was x - 2 and ये जो -2x + 4 है ये क्या है? रिमाइंडर। अगले स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कैसे? ये जो हमारा रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। -2x बन जाएगा +2x, +4 बन जाएगा -4। इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड को, x - 2 को भी हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आएगा तो मतलब हम इस x³ - 3x² + x - 2 को x - 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड किया, ऑलवेज रिमेंबर अगेन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है अगर रिमाइंडर ही माइनस कर दिया तो जो कोशेंट और डिवाइजर दोनों क्या बन जाएंगे? इसके फैक्टर। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? हमें क्या निकालना था? डिवाइजर निकालना था। ये जो x² - x + 1 आया, ये कहां से आया? जब हमने इस x³ - 3x² + 3x - 2 को डिवाइड किया x - 2 से, और इसी डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? gx। तो इसका मतलब जो हमारा gx होगा दैट विल बी
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे देखिए ये है आपका, अभी हमने जो किया वो 2 0 के लिए किया, अब हम करते हैं 3 0 के लिए। अगर आपको 3 0 गिवन हो, यू नीड टू अगेन वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल गिवन है और 0 भी गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है? वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड आर देयर 0। हमें चेक करना है क्या ये 3 वैल्यू इसकी 0 है। 0 कैसे चेक करते हैं? 9th क्लास में ऑलरेडी आपने किया हुआ है। हम x की वैल्यू यहाँ पर हाफ है, हाफ पुट करो और चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है। हाफ पुट करने के बाद देखो, हाफ पुट किया, एक्स क्यूब के प्लेस पे हाफ क्यूब, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हाफ स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे हाफ, टेक एलसीएम, you will get 0. If you take second value 1, again you will get 0. Take third value minus 2, again you will get 0. क्योंकि तीनों वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना है? 0. So we can say these 3 value are the zeros of this polynomial. ठीक है, पहला काम हमारा हो गया। पहला क्या था? वेरीफाई करना। अब आगे क्या है? इस वेरीफाई को आगे भी कैसे करना है? रिलेशनशिप भी निकालनी है, किसके साथ? जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। जैसे हमने पहले किया था, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। सिमिलरली हमारे पास 3, जब कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें भी आप निकाल सकते हो। देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसको हम कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यू विल फाइंड, अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 2। ओके, और 3 0 गिवन है, हाफ 1 माइनस 2, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज पुट द वैल्यूज हाफ 1 माइनस 2 विच इज माइनस हाफ, and that must be equal to minus b upon a. याद रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा should be equal to minus b upon a. Sum of product of the zeros should be equal to c upon a and product of the zeros minus d upon a. यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे, उन सभी वैल्यू को पुट किया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू, ये अल्फा हाफ था, बीटा 1, गामा माइनस 2। तीनों को चेक करके चेक किया तो हमारे पास क्या हुआ? ये रिलेशन हमारे पे क्या हुई? वेरीफाई हो गई। हेंस वी कैन से दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, होप जो आज का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।